Namaskar and a very good afternoon, one and all present here. On behalf of Ganpati University, I welcome you all to the celebration of Vidya Shilpi Divas, Public Service Leadership Lecture on Self-Discipline for Success in Life. I wish you all a very happy International Women's Day. It is indeed a matter of pride that Ganpati University has served as a beacon of light and has been a ladle of knowledge since its inception. The university has always strived to provide holistic and value based education to its students, realizing very early that the overall development of a student is the foundation for a successful human being. All the stakeholders of Ganpati University take their pride in celebrating 8th March as Vidya Shilpi Divas on the birth anniversary of late Sri Anirbai Patel, former president Ganpati University every year. Ganpati University is deeply grateful to its founders, donors, trustees, donors of land, and the Constitution of India for giving the society and the country a great institution based on the philanthropic mission of Vidyaya Samajotkarsh, social upliftment through education. The Guni family further acknowledges the contribution of all its stakeholders, including the Government of India, the Government of Gujarat, all past and present members of Board of Governors, the Academic Council, the Finance Committee, various bodies of Ganpati University, all its past and present office bearers, partners, staff members, parents, and students. We sincerely thank each individual for their gracious contribution to helping us reach the forefront of social, cultural, and educational initiatives and endeavors for the nation. Thank you. Today, on the occasion of Vidya Shilpi Divas, we warmly welcome respected former Director General of Police and Commissioner of Police, Surat, Gujarat, Shri Ajay Kumar Tomar, IPS, as distinguished guest. We also would like to welcome Shri Ganpat Bhai Patel, Honorable President and Patron-in-Chief of Ganpati University, Srimati Manjula Ben Patel, our beloved Dadi, Dr. Mahendra Sharma, esteemed Group Pro-Chancellor, Ganpati University, all Pro-Chancellors, all the honorable members of Board of Governors, members of Executive Committee and trustees, Ganpati University, Pro-Vice Chancellors, Executive Registrar, Deputy Pro Vice Chancellor, Executive Deans, Associate Executive Deans, Deans of various institutes, directors, chairpersons, principals, heads, faculty members, dear students, and invited guests to the Public Service Leadership Lecture on the topic of self-discipline for success in life. It is indeed an honor to welcome a stalwart of law enforcement, a visionary leader, and a guardian of justice, Mr. Ajay Kumar Tomar, a distinguished officer of the 1989 batch of the Indian Police Service. His illustrious career has been defined by dedication, integrity, and an unwavering commitment to public service. From his initial posting as an ASP to holding prestigious roles such as Joint Commissioner of Police Ahmedabad, IGBSF Punjab Frontier, and Commissioner of Police Surat. Sir has consistently displayed exemplary leadership in crime control, border security, and counter-terrorism operation. His strategic interventions have led to the dismantling of organized crime syndicates, eradication of drug cartels, and significant contributions to national security. His achievements speak volumes, whether it is curbing the land mafia, securing borders, or empowering citizens through impactful initiatives. His expertise is not only acknowledged in policing, but also in academia, as he shares his knowledge as a visiting faculty at IIM Ahmedabad. Honored with prestigious awards such as the President's Medal for Distinguished Service, his leadership has left an indelible mark on India's law enforcement landscape. Sir has retired as the Director General of Gujarat Police. We welcome you, Dada. Sir has retired as the Director General of Gujarat Police
a testament to his unwavering commitment and exceptional leadership. Today, we have the privilege to hear from a man whose service has redefined security, governance, and public trust with great admiration and respect. Let us welcome the esteemed Mr. Ajay Kumar Tomar, sir. I would like to request Marine Girl Cadets to welcome Shri Ajay Kumar Tomar, IPS, former Director General of Police and Commissioner of Police, today's guest. Sir, I would like to request to please come on the dais. Thank you, Dada. Now I would like to request our distinguished expert for the speech. Good morning, everybody. Rather, it is afternoon. Very good afternoon to all of you. Respected Shri Ganpat Bhai, Srimati Manju Ben, Dr. Sharma, the Vice Chancellor, other respected teachers of the university, all others, ladies and gentlemen, and my dear student friends. You must be seeing that the topic today is self-discipline for success in life. You can be very frank with me. Are you not tired of this word discipline? Right since your nursery days, they start disciplining you. The teacher told you, keep mum, don't move, don't frisk. And that was the beginning of discipline in your life. Thankfully, I'm not going to talk about that kind of discipline today. Discipline that is enforced from outside is a misnomer. The word discipline as such originated in Latin language. It simply meant learning, teaching, instruction. हमारे संस्कृत में भी अनुशासन का अर्थ है जानना, सीखना. लेकिन मिलिट्री ने, फोर्सेस ने, और हर बड़े आदमी के अंदर एक मिलिट्री और एक फोर्स होती है. उसने बच्चों को डिसिप्लिन का एक ही मतलब सिखाया है, बोलो मत, नया सोचो मत, हिलो मत, क्रिएटिव कुछ मत करो. Like I told you, I'm not going to talk about that kind of discipline. This is a university known for science and technology. And so I know my elderly, dear, respected friend Ganpat Bhai since pretty long. He's a man of science, a man of electronics. When we talk in terms of scientists in this world, the first name generally most of you would think of is Albert Einstein. He gave the theory of relativity, general theory of relativity. E is equal to mc square. Now, I'm not going to talk about Albert Einstein also. There is somebody else who was born in India, who lived in India, he taught in India, and he gave to India something
that we have frittered away over thousands of years. I'm talking about Patanjali. Patanjali gave Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga simply was a way of living your life to the fullest, realizing your true potential in life, finding what nature bestowed upon you, because all of us are creations of nature. Shankaracharya long back had said, Eko Brahma Dvitiyo Nasti, Amham Brahmasmi Tattvam Asi, Sarvam Khaloidam Brahma, Satyam Brahma Jagat Mithya, सच्चिदानंदम ब्रह्म। अब ये सारे सूत्र यदि आप लोगों ने सुने भी होंगे तो ये सूत्र इस तरह से कहे जाते हैं कि इनको सुन लिया जाता है, इनको कह दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। यदि एक ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यदि एक ही ब्रह्म है और ब्रह्म के अलावा यदि वो कुछ भी नहीं है तो आप और मैं क्या हैं? हम और आप भी ब्रह्म हैं। समुद्र के बूंद से, समुद्र पूरा समुद्र है, दरिया, उसमें से एक बूंद निकाल लीजिए, उस बूंद के अंदर उसकी केमिकल कंपोजिशन पूरे समुद्र की केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है। उसमें वो सब क्वालिटीज हैं जो दरिया में हैं। यदि एक बूंद दरिया को रिप्रेजेंट करती है तो एक एक व्यक्ति हम में से एक एक आत्मा परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन है, और एक एक आत्मा यदि परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन है तो परमात्मा की सभी ताकतें हमारे अंदर निहित हैं। वी आर इन्वेस्टेड विद ऑल पोटेंशियल, ऑल पावर्स, ऑल कैपेबिलिटीज। वी एसोसिएट ओनली विद गॉड ऑलमाइटी। आप लोगों को वो कैलेंडर घर में याद होगा, लगभग हर घर में होता है, जिसमें अर्जुन रथ पर बैठे हैं, भगवान कृष्ण सारथी बन के घोड़ों की लगाम पकड़ के बैठे हैं। अर्जुन सेनापति था पांडव सेना का, बड़ा धनुर्धारी था। युद्ध जब आरंभ हो रहा था तो उसने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु जरा रथ को वहां ले जाइए जिससे मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, दृष्टिगोचर तो कर सकूं। और भगवान कृष्ण जो कमाल के, उनसे बेहतर सारथी कोई नहीं था, घोड़ों को चलाने वाला उनसे बेहतर कोई नहीं था। वो उस घोड़ों को सही बीचों बीच ले गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वहां उन्होंने देखा कि अर्जुन देख रहा है, अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है, ज्वरग्रस्त हो गया है। बोलता है कि प्रभु ये युद्ध मैं कैसे लड़ूंगा? वो सामने भीष्म पितामह दिख रहे हैं मुझे, उनके साथ मेरे कजन्स हैं सारे धृतराष्ट्र कौरव कुल के, मेरे गुरु द्रोण भी हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गोद में खिला के मुझे बड़ा किया है। इनके सामने मैं हथियार उठाऊंगा, कैसे उठाऊंगा? वो बोल तो ये रहा था और उसके पैर कांप रहे थे, पग ध्रुजता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू अपना असली स्वरूप पहचान। उन्होंने ज्ञान की बात की, उन्होंने भक्ति की बात की, उन्होंने सांख्य योग की बात की कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, कि शरीर का विनाश होता है, आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, और यदि आत्मा का विनाश नहीं होता तो तेरा विनाश भी नहीं होगा। तू तीर चलाएगा, उनको ठीक जगह पे लगेगा, उनका शरीर मृत्यु पाएगा लेकिन उनकी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अर्जुन को थोड़ा समझ आता है, लेकिन अर्जुन भी बाल सखा था कृष्ण का। वो ये सब सुनने के बाद भी नए प्रश्न खड़े करता है। भगवान कृष्ण एक अध्याय में एक प्रश्न उसका निवारण करते हैं, उसकी शंकाओं का, तो दूसरी शंकाएं खड़ी होती हैं। उसके बाद फिर वो और प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता है। इसी तरह से 10 अध्याय खत्म हो गए। 11वें अध्याय के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे प्रश्नों को मैं सुन भी रहा हूं, मैं उनको समझ भी रहा हूं, वो कहां से ओरिजिनेट, उनका जेनेसिस कहां है, वो कहां से निकल रहे हैं, लेकिन अब तू मुझे देख, अब तू मेरा स्वरूप देख। और उन्होंने अपना विराट स्वरूप उसको दिखाया। विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन देखता है कि पूरी सृष्टि उन्हीं के अंदर समाविष्ट होती है, सब लोग आ रहे हैं, जीवन हुआ,
मृत्यु हुआ, उनके अंदर गए, उन्हीं के अंदर गए, वहीं से सब पैदा हो रहा है, वहीं खत्म हो रहा है, वहीं जा रहा है। इस विराट स्वरूप को देख के उसकी आंख खुली रह गई। और भगवान कृष्ण ने, नाउ ही डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस विद अर्जुन, क्योंकि युद्ध तो शुरू करना था, युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हैं और यहाँ डिजर्टेशन और पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट लेके बैठ गए अर्जुन। तो भगवान ये क्या है, वो क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू मुझे देख, ये मेरा स्वरूप है। और उन्होंने बताया कि मैं पर्वतों में हिमालय पर्वत हूं, सर्वश्रेष्ठ पर्वत मैं हूं। मैं, यदि अश्व हैं, घोड़े हैं, तो घोड़ों में मैं उच्च श्रेवा अश्व हूं, जो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था। मैं वेदों में सामवेद हूं, क्योंकि सामवेद से संगीत की शुरुआत हुई, म्यूजिक की शुरुआत हुई। मैं वेदों में सामवेद हूं। और यदि मैं गाय हूं तो मैं कामधेनु हूं। मैं जो कुछ भी हूं उसका सर्वश्रेष्ठ मेरे अंदर है, मेरे अंदर निहित है। और यदि मैं सर्प हूं, सांप भी मैं ही हूं, जे करड़े छे। यदि मैं सांप हूं तो मैं वासुकी सांप हूं। आप लोगों को याद होगा वो दृष्टांत, जब देवों और दानवों का झगड़ा चल रहा था, फिर अमृत मंथन हुआ था और भगवान ने कहा कि अमृत को मंथन करो, वलोणु करो, અને વલોણું જે નીકળશે અમૃત નીકળશે। लेकिन अब पर्वत के अंदर, अब दरिया का, समुद्र का इतना महासमुद्र, उसके अंदर पर्वत तो रख दिया, उसको घुमाए कैसे, इतना मोटा दोरड़ा कहां से लेके आए। वासुकी ने कहा, वासुकी सबसे बड़ा सर्प था, उसने कहा मैं इस पे लिपट जाता हूं, एक पार्टी मेरे मुंह की तरफ से खींचे और एक मेरी पूंछ की तरफ से खींचे, वलोणु हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सांपों में वासुकी हूं। अब वो तो प्रभु थे, वो अहंकार के कारण ये चीजें नहीं बोल रहे थे। उनका कहने का अर्थ ये नहीं था अर्जुन तू क्षुद्र है और मैं ये हूं। उनका कहना था कि तू अपने असली स्वरूप को पहचान, यदि मैं सभी ये हूं तो तू भी वही है। तू अपने अंदर इस चीज को पहचान कि तू कितना श्रेष्ठ है, कितनी बड़ी ताकत है। और यदि सब मेरे अंदर निहित है तो तेरे अंदर भी निहित है। तू अपना कर्म कर, तेरा धर्म है। इस वक्त तू योद्धा है और योद्धा का धर्म है युद्ध लड़ना। और हमने पूरे प्रयास किया है कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध यदि अवश्यंभावी है तो उसको लड़ना तेरा धर्म है। यदि इससे भागेगा तो कायर कहलाएगा। उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये चीज समझाई, हम सभी लोग एक दूसरे को गीता का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हम भारत में ये भूल गए हैं भगवान कृष्ण का जो मुख्य गीता का संदेश था कि यदि तुम अपने अंदर सही उतर के देखो तो तुम परमात्मा हो। परमात्मा की सब शक्तियां तुम्हारे अंदर निहित हैं। तुम्हारे अंदर अपरिमित असंभावनाएं हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज आर इनहेरेंट इन यू। मैं उस डिसिप्लिन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि पतंजलि की जिसकी मैं बात कर रहा था एज ए साइंटिस्ट, महानतम वैज्ञानिक यदि आइंस्टाइन को माना जाता है तो मुझे लगता है कि पतंजलि उनसे कम नहीं थे। और ये मैं भारत प्रेमी होने के कारण नहीं बोल रहा हूं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये करोगे तो ये होगा। यदि एम्पेरिकली आप ये देख सकते हैं, लेबोरेटरी में आप यही देखते हैं, यही चीजें आप प्रूव करते हैं एम्पेरिकली। यदि आप जीवन में एक काम करें तो उसका इफेक्ट ये आएगा। ये साइंस है, इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। पतंजलि ने कहा कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपका ऐसा होगा। एंड ही वॉज कंसर्न विद ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बॉडी। उस साइंटिस्ट का कमाल यह था कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट। यदि आप अपने शरीर को सशक्त बना लेंगे, शरीर को स्थायी कर लेंगे, उसको यदि फालतू की गतिविधियों से मुक्त कर लेंगे तो आपका मन भी शांत होगा। और यदि आप मन को, चित्त वृत्तियों को शांत कर लेंगे तो आपका शरीर भी शांत होगा। अब ये कहने से बात कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई नो फाइंडिंग एनी रिस्पॉन्स। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? पतंजलि ने तो हजारों साल पहले कहा था, हुआ तो नहीं। आज भी विश्व के लीडिंग नेशंस में हम नहीं हैं। हमारी जीडीपी विश्व में 5वें नंबर पे है, हम चौथे नंबर पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। 150 करोड़ पॉपुलेशन है, उसको इंग्लैंड की 8 करोड़ पॉपुलेशन, जर्मनी की 7.5-8 करोड़ पॉपुलेशन, या जापान की 11 करोड़ पॉपुलेशन,
इनके साथ कंपेयर करना मतलब वो बेमानी है। वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। तो यदि पतंजलि ने ये चीज समझाई तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको सिर्फ नारों के तौर पे सुना, हाथ जोड़े, तालियां बजाई और बात खत्म हो गई। मैं इस चीज को आज इससे आगे बढ़ाना चाहता हूं। अष्टांग योग जो पतंजलि ने कहा, अष्टांग योग जिसके 8 अंग हैं, 8 लिम्ड साइंस ऑफ योगा। पतंजलि ने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं, 8 लेवल्स हैं। आप एक लेवल पे ये काम करोगे तो इसका असर ये आएगा। इसमें यम जो है वो आपके आचार व्यवहार को कंट्रोल करने की बात है। आप कैसे खाएंगे, आप कैसे शरीर की शुद्धि करेंगे, आप कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, आप अपना सदाचार कैसे करेंगे। ब्रह्मचर्य यानी भगवान की तरह की चर्या, उसका किसी किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य यानी भगवान की उत्तम प्रकार की दिनचर्या कैसी हो वो सिखा रहे हैं इसमें। यदि ये करेंगे तो दूसरा लेवल आता है नियम का। और नियम का सही मीन्स अर्थ नियम नहीं है। नियम का सही अर्थ रूल भी नहीं है। नियम का सही अर्थ है जो पतंजलि बता रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने आप को कंट्रोल करो। अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि यदि हम ये मानते हैं कि हम परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा की पूरी ताकतें हमारे अंदर निहित हैं, हमारे अंदर हैं, हमारी चेतना में इतनी क्षमताएं, संभावनाएं, इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, प्रॉब्लम क्या है फिर? हम महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? हम उसको देख क्यों नहीं पाते हैं? उसको काम में क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि मन है। और मन कभी इस तरफ दौड़ता है, कभी इस तरफ दौड़ता है, कभी यहां जाता है, कभी यहां जाता है। 1000 दिशाओं में इसकी गतियां हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, एक रूपक मैं आपको बताता हूं कि एक कुआं है। कुआं के अंदर ऊर्जा है। मैं अपनी ऊर्जा की बात कर रहा हूं, हमारे और आपके अंदर जो ऊर्जा है। कुआं है, कुएं के अंदर आपने एक बाल्टी डाली और बाल्टी को आपने पानी में डाला और आपने हिला के देखा, बाल्टी भर गई। आपको लगा बाल्टी भर गई, अब इसको बाहर निकालें। लेकिन बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो बाल्टी में तो छिद्र हैं, काणोच है। जब तक ऊपर बाल्टी को खींचते हैं तब तक सारा पानी खलास। ये हमारा मन है जो इतनी दिशाओं में वृत्तियां करता है। इनको यदि और स्पष्ट मैं बताऊं कि मन हमारी ताकत को कहां कहां बाहर निकाल देता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अस्तेय, इन सारी चीजों में जब तक ऊर्जा बाहर निकलती है उससे पहले इन सब छिद्रों में से पूरी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और जब तक हम बाल्टी पकड़ते हैं काम में लेने के लिए तब तक बाल्टी खाली। और पूरी उम्र यही प्रयास हमारा चलता रहता है। फिर बाल्टी डालते हैं, फिर निकालते हैं। और एक और खतरनाक चीज होती है। आगे की लाइन पे मेरी उम्र के या मुझसे भी बड़ी उम्र के कुछ लोग बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब कानों में से 30, 40, 50 साल पानी निकलता रहेगा तो काने और बड़े हो जाते हैं, छेद और बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर बूढ़े आदमी आपको गंभीर, उदास और थके हुए दिखाई देंगे। बच्चों में जो इतनी एज के बच्चे हैं उनके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ नहीं है। वो थकते ही नहीं है। छोटे बच्चे थकते ही नहीं है। परमात्मा का स्वरूप है वो पूरे दिन दौड़ेंगे। एक दिन एक बच्चे के साथ एक्सरसाइज करके देख लीजिए, आपको लगेगा जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, स्टेडियम में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है, वो थकता ही नहीं है। बड़ी उम्र तक आते आते लोग उदास दिखाई देते हैं, बच्चे प्रसन्न दिखाई देते हैं। ये एक और प्रूफ है इस चीज का जो साइंटिफिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे अंदर ऊर्जा तो बहुत है लेकिन उसको हम वेस्ट करते हैं। अब फिर से वापस जाते हैं उसी वार्ता पे, महाभारत की वार्ता पे। आपको क्या विचित्र नहीं लगता कि जो परम पिता परमात्मा का स्वरूप भगवान कृष्ण हैं, वो तो सारथी बन के बैठे हुए हैं। वो तो घोड़े चला रहे हैं, सारथी का काम कर रहे हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं। और जो धनुर्धारी है लेकिन बिल्कुल सामान्य आदमी है, अर्जुन, सामान्य आदमी की सारी कमियां उसके अंदर हैं। आप महाभारत उठा के पढ़ लीजिए, अर्जुन में कितनी कमियां थी आपको पता लगेंगी। और वो शेठ बन के पीछे वाली सीट पे बैठा है, मुख्य आदमी वो है, और भगवान कृष्ण उसके सारथी बन के बैठे हैं। आपको अजीब लगता है कि नहीं लगता है?
कोई आवाज नहीं आई। मैं इतनी देर से इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, माइक है मेरे पास, लेकिन आपके वोकल कॉर्ड्स तो हैं। आप लोगों को ये बात अजीब लगती है कि नहीं लगती है? नहीं आई, पीछे से अभी भी आवाज नहीं आई। आवाज अजीब लगती है ये बात के नहीं लगती है? यस यस, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई लाइक। कारण उसका ये है कि युद्ध से पहले भी, युद्ध के दरमियान भी, युद्ध के बाद भी, क्योंकि घोड़े चलाने वाले की हालत वो है जो भगवान का रोल होता है, जो हमारे अंदर विवेक का रोल है। और घोड़े हैं, ये हमारे मन की मनोवृत्तियां हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अस्तेय, जो मैं बता रहा था आप लोगों को। और ये सारी चीजें इसलिए हैं कि इन घोड़ों की जरूरत है लाइफ में। इन घोड़ों की जरूरत है। यदि लोभ नहीं होता तो गणपत भाई अमेरिका में जाकर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल साम्राज्य ना बनाते, और वो ना बनाते तो फिर ये यूनिवर्सिटी कहां से बननी थी? फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं था। लोभ की भी जरूरत है। और काम नहीं होता तो आप और हम में से कोई भी आज यहां ना होता, सृष्टि कब की पूरी हो गई होती। जन्म यहीं से होता है। क्रोध भी, कोई बदमाश आदमी, मैं तो पुलिस ऑफिसर के तौर मेरा फोटो आप लोगों को दिखा था पीछे, यदि क्रोध मैं ना करूं किसी बदमाश आदमी के लिए तो फिर तो मैंने गांठ से कोई गांठ होना न थी। क्रोध की भी जरूरत है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सब वृत्तियों की जरूरत है। लेकिन यदि इनकी लगाम ठीक हाथ में नहीं होगी, यदि इनकी लगाम को ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो घोड़े आपको कहां ले जाएंगे? कभी यहां गड्ढे में गिराएंगे, कभी वहां गिराएंगे, कभी यहां एक्सीडेंट करेंगे, कभी वहां एक्सीडेंट करेंगे। वो कहीं संग काशी नहीं पहुंचेगा, वो रथ ठीक जगह नहीं चलेगा। तो अंदर हमारे जो विवेक है वो परमात्मा का प्रतीक है। वो विवेक यदि हमारी इन वृत्तियों को ठीक से कंट्रोल करके रखता है, तभी हमारा जीवन ठीक दिशा में चलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण इसमें सारथी हैं। आपका, हमारा विवेक हमारा सारथी है। और विवेक को मैं अभी सेल्फ डिसिप्लिन का नाम भी दूंगा। यदि हमारा विवेक जागृत है, यदि वो काम कर रहा है, तभी हमारा सेल्फ डिसिप्लिन काम आएगा। अनुशासन परम धर्म है। ये दीवारों पे लगे हुए सूत्र पढ़ पढ़ के तो कितनी दीवारें पुरानी हो गई, कितनी दीवारें गिर गई। सूत्रों से कुछ नहीं होता, इसमें गहरे उतरना पड़ेगा। सबको सारे सूत्र पता हैं। कितने ही लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब गीता मैंने इतनी बार पढ़ी है, मुझे कंठस्थ याद हो गई। अब मैं उसको ऊपर से नीचे देखता हूं, यार तेरी आंख में, तेरे शरीर में, तेरे वाणी में कहीं से भी मुझे गीता का एक अंश दिखाई नहीं दे रहा है। तूने पढ़ तो बहुत बार ली। गीता को पढ़ना, गीता को जानना है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ये कोई चीज पॉसिबल नहीं है। और सेल्फ डिसिप्लिन अष्टांग योग का दूसरा लेवल है। दूसरे लेवल के बिना आप तीसरे लेवल पे जा ही नहीं सकते। आपको आसन कैसे करना है समझ ही नहीं आएगा। योगासन सिर्फ अंग कसरत या मरोड़ना या हाथ को यहां रखना ये नहीं है। वो मन को कंट्रोल, वो चित्त वृत्तियों को, वो घोड़ों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। 8 लेवल पे होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब ये घोड़े कंट्रोल में आएंगे। इसी का सेल्फ डिसिप्लिन नाम है। और यदि योग अनुशासन नहीं है तो योग कुछ भी नहीं है। योग यदि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अकेले डिसिप्लिन का मिसयूज बहुत हुआ है। अकेले डिसिप्लिन का मिसयूज करके आपका और हमारा जो हाल है वो इसी डिसिप्लिन के कारण हुआ। मैं फिर से बता रहा हूं। आप लोग जब पहली बार स्कूल में गए होंगे तो नर्सरी क्लास में, केजी में टीचर ने कहा होगा छाना मुना बस, छानी मुनी बस, हलवानू नहीं, आम आम नहीं जवानू। और कोई बच्चा यदि प्रश्न पूछना शुरू कर दे तो उसको बहुत डांट पड़ती है। तू बहु बोल बोल करे छे, बोलता बहुत है, इतना मत बोल। तो वो बोलना बंद, सब कुछ बंद। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, एक एग्जाम्पल सुनाना चाहता हूं मैं आपको। आप लोगों ने अभी मुझे, जब मैं यहां आ रहा था तो 5000 वृक्ष दादा ने लगाए हुए हैं। दादा ने, उनके बड़े भाई ने मिलकर लगाए हुए हैं यहाँ। आपको ये पता है कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? फॉर अ लॉन्ग टाइम कैलिफोर्निया में एक ट्री है सेकोइया।
सेकोया ट्री का एक ट्री जनरल शर्मन। जनरल शर्मन कौन थे? जो बोटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और वो पूरे अमेरिका में जंगलों में घूमते थे। उनका एक दिन ध्यान गया, अरे इतना ऊंचा पेड़, बाकी पेड़ यहाँ है, यहाँ है, ये पेड़ तो यहाँ गया। उसकी हाइट उन्होंने मापी, तो उसकी हाइट निकली 280 फीट, 280 फीट। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बहुत लंबे समय तक जनरल शर्मन को माना जाता, उसका नाम जनरल शर्मन रखा गया। जिस जाति का वो पेड़ है, उसके बीज यदि आप लें तो 50 ग्राम में हजारों बीज आ जाते हैं। छोटा सा लाइट सा बीज होता है उस पेड़ का। और जापान में एक आर्ट होती है बोनसाई, आपको पता है? पेड़ों को बड़ा करते भी नहीं और बड़ा भी कर देते हैं, उसकी शक्ल बड़े पेड़ जैसी हो जाती है, वो रहता इतना सा है। तो सेकोया के एक ट्री को जापानी बोनसाई जब बनाया जाता है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे ही वो जमीन से बाहर निकला, पौधा निकला, तो उसको मिट्टी में से निकाल लेते हैं और उसकी जड़ों की टैपिंग की जाती है। आप लोग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं यहाँ, काफी एग्रीकल्चर यहाँ सब्जेक्ट है। बोनसाई कैसे बनाया जाता है आपको पता है? उसकी जड़ों को बांध दिया जाता है, काट दिया जाता है। फिर वो क्या होता है कि उसमें पत्ते भी आते हैं, उसकी शाखाएं जितनी बढ़ती हैं उनको भी काटते, जड़ों को भी काटते हैं, रूटों की टैपिंग भी कर दी जाती है। फिर वो क्या होता है, वो सेकोया का ट्री इतना बड़ा ट्री होता है, वो देखने में तो उसकी शक्ल तो बिल्कुल सेकोया जैसी हो जाती है। जनरल शेरमन का और उसका फोटो रखो, साइज को भूल जाओ तो दोनों एक जैसे दिखेंगे। आपका और हमारा हाल, पूरा समाज मिलके हमें बोनसाई बना देता है डिसिप्लिन के नाम पे। इसलिए मैं उस डिसिप्लिन की बात नहीं करता हूं, मैं सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता हूं, जो अंदर से आता है, जो अपनी अपरिमित संभावनाओं को रियलाइज करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए, जो अंदर से एक भावना निकलनी चाहिए विवेक से कि मैं अपनी शक्तियों का महत्तम उपयोग करूंगा। आई शैल मैक्सिमाइज माई पोटेंशियल, आई शैल रियलाइज माई पोटेंशियल, आई विल एक्चुअलाइज माई सेल्फ। यदि आप लोगों को यह लगता हो कि आप लोग बेंजाई नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा इनाम कौन सा माना जाता है? नोबेल प्राइज है या नहीं है? नोबेल प्राइज दुनिया में सबसे बड़ा इनाम माना। ये इस साइड में ये स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, आई एम फाइंडिंग, आर यू अस्लीप? आप लोगों को यदि नींद आए तो एक भी बच्चा हाथ खड़ा कर देगा तो मैं लेक्चर को वहीं पूरा कर दूंगा। आप लोग सो तो नहीं रहे हैं? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए जब मैं पूछूं आप लोगों से। गुड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इनाम कौन सा माना जाता है? नोबेल प्राइज। सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ था, स्वीडन, स्टॉकहोम में, ओस्लो में, वहां वो लोग काम करते थे, वहां से निकला। कब शुरुआत हुई नोबेल प्राइज की? 1901 में। 124 साल हो गए। हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड पीस, ये 6 सब्जेक्ट्स पे नोबेल प्राइज हर साल डिक्लेयर किए जाते हैं। कभी कभी एक टीम मिलकर रिसर्च करती है, उनको 3-4 लोगों को एक साथ मिलता है नोबेल प्राइज। आज तक 124 साल में कुल 978 लोगों को नोबेल प्राइज मिले हैं। કેટલા ને મળ્યા टोटल? 978। इस दुनिया में पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। वी आर नंबर 1। वी आर लेफ्ट चाइना बिहाइंड। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 146 करोड़। सेंसस होगी तब पता लगेगा एग्जैक्टली, हो सकता है 150 के करोड़ के आसपास पहुंच गए हो। 978 नोबेल प्राइज में से इंडिया को आज तक कितने नोबेल प्राइज मिले, कोई बता सकता है मुझे? मैं गिनवाऊं आप लोगों को? गिनना है? इस पे तो रेस्पॉन्स करो, गिनना है? यस। 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर गीतांजलि, नंबर 1। आप गिनते जाइए, फिर मैं पूछूंगा कितने हुए। नंबर 2 प्रोफेसर सीवी रमन, 1930-31 रमन इफेक्ट। नंबर 3
डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नंबर 4, प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नंबर 5, मदर टेरेसा। नंबर 6, अमर्त्य सेन। नंबर 7, वेंकट रमन। नंबर 8, अभिजीत बनर्जी फॉर इकोनॉमिक्स। नंबर 9, कैलाश सत्यार्थी। कोई शायद मैं एक भूल गया क्या? इतने ही हैं? नहीं, जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला था, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। आई डोंट कमिट मिस्टेक्स ऑन दीज। इन एनी केस 9 10 में कोई फर्क नहीं होता। 9 हुए। अब 9 में से मैं आप लोगों को गिनवा रहा हूं कि क्या उनको इंडियन नोबेल प्राइज गिना जा सकता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना लायलपुर जो पाकिस्तान में था वहां पैदा हुए, चले गए अमेरिका में, वहीं रहे, काम किया, वहीं के सिटीजन हो गए, तो उसको इंडियन गिनना चाहिए। वी आर प्राउड ही वॉज बोर्न इंडियन। उस वक्त लायलपुर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी बाहर चले गए, वहीं रहे। अमर्त्य सेन भी बाहर चले गए, वहीं रहे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड वगैरह में घूमते रहे। अभिजीत बनर्जी भी इंग्लैंड में ही रहते हैं। उनके अलावा वेंकट रमन जो कुछ दिन बड़ौदा में भी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, साइंस के स्टूडेंट थे, वो भी वहीं गए, वहीं के रहे, वहीं नोबेल प्राइज मिला, वहीं काम किया उन्होंने भी। मदर टेरेसा को इंडियन गिना जा सकता है। शी वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया और उन्होंने आके सेवा की इंडिया में, कलकत्ता में, कुष्ठ रोगियों की। अब इतने सारों को निकाल दिया जाए तो इंडिया के हिस्से में नोबेल प्राइज कितने बचे? अब बताइए मेरे को गणित करके। 3। 150 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में मिले 3। अब मैं एक छोटी पॉपुलेशन की बात करता हूं। आपने जूस का नाम सुना है? मोस्टली जूस इजराइल में हैं, थोड़े इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं। उनकी टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। हमारी 1%, हमारी करीब करीब 150 करोड़ से थोड़ी कम है, उनकी 1.5 करोड़ से थोड़ी कम है। Jew population is only about 1% of India's population. हमें कुल कितने नोबेल प्राइज मिले? आप लोग गिनती कर लीजिए, अभी तो क्लियर है काउंटिंग। जूस को कितने मिले होंगे? 224। 224, ऑलमोस्ट, लगभग हर चौथा नोबेल प्राइज किसी जू को जाता है। वो जनरल शेरमैन की तरह से ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं? अब आप लोग कहेंगे कि वो भणेसरी वधारे हशे, હવે ભણેસરી વધારે હોત तो मार्क स्पिट्ज एक जू था, अमेरिका के बिहाफ पे 1972 ओलंपिक्स में आया, अकेले ने 7 गोल्ड मेडल जीते। अकेले ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 7। और मैक्सिको ओलंपिक को मिला लिया जाए तो उसके 10 या 11 मेडल हो जाते हैं। गोल्ड्स की बात कर रहा हूं। और एक और लड़की थी, हंगेरी की थी, वो भी जू थी, 6 गोल्ड मेडल। तो 2 लोगों को मिला के कुल 13 गोल्ड मेडल तो जूस ने 2 ही ओलंपिक में 2 व्यक्तियों ने जीत लिए, बाकियों को छोड़ दो। इंडिया के आज तक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कितने होंगे? काउंट करें, काउंट करें। 1928, उससे पहले कुछ नहीं मिला। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, वी वन द हॉकी गोल्ड। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक, वी अगेन वन द हॉकी गोल्ड। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, हिटलर ने हाजिरी में ध्यानचंद और रूपचंद ने और किशनदाल ने मिलके इंडिया को, जर्मनी को हरा के गोल्ड मेडल जितवाया। उसके बाद 1948 हेलसिंकी ओलंपिक्स में अगेन वी वन गोल्ड। 1952 अगेन वी वन द गोल्ड। 1956 अगेन वी वन इन मेलबर्न, वी वन द गोल्ड। 1960 में नहीं मिला, 64 में टोक्यो में फिर से हमें गोल्ड मेडल मिला। कितने हो गए अभी तक? कितने हुए? उसके बाद 1980 में ज्यादातर कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया था ओलंपिक गेम्स का। तो यूरोप की टीम नहीं थी, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, इंग्लैंड वगैरह कोई थी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था। हॉकी की सारी टीम आई नहीं, मेन टीम, हमने फिर से गोल्ड जीता। ये कितना हुआ? और 80 के बाद सिर्फ 2 गोल्ड मेडल और मिले, एक अभिनव बिंद्रा का और दूसरा नीरज चोपड़ा का, टोक्यो ओलंपिक्स में। कुल कितने हुए? 10। और जूत जो भणेसरी हैं, जो सारे नोबेल प्राइज भी जीत जाते हैं, उनके 2 ही लोगों ने मिलकर 2 ही ओलंपिक्स में 13 गोल्ड तो 2 लोगों के हिस्से में आ गए।
इसका मतलब वो जनरल शेरमैन है कि नहीं है? 276 फीट के आदमी कैसे पकते हैं, इसका मतलब दुनिया में ऐसे हम ढूंढने जाएं तो मिलते हैं। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। अब जूस ऐसे कैसे हैं, और हम ना तो हम नोबेल प्राइज जीतते हैं, ना हम ओलंपिक्स में जीतते हैं। नीरज चोपड़ा ने जीता, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। मेरे गांव के नजदीक का रहने वाला है। मेरी उससे बात भी होती है। यदि एक नीरज चोपड़ा जीत सकता है, इसका मतलब वही निहित संभावनाएं तो आप और हमारे अंदर भी हैं। वो पहचान गया, उसने उसको बाहर निकाला, हम बाहर नहीं निकाल पाते। ये एक खतरनाक चीज है, जिसको मैं बता रहा हूं आपको कि पहला स्टेप होगा सेल्फ डिसिप्लिन, यदि आप अपनी ताकत को बाहर निकालना चाहते हैं। और स्टूडेंट यदि अपनी ताकत को बाहर निकालना चाहते हैं, अब तो आप यहां आ गए, केजी नर्सरी स्कूल वो तो पूरा हो गया, अब तो आप यूनिवर्सिटी में आ गए। एकमात्र चीज मैं आप लोगों को बताऊं जो सेल्फ डिसिप्लिन में आप लोगों पे सब पे लागू पड़ती है, पूछना है आप लोगों को। सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन। ऑन एन एवरेज मैंने स्टडी किया, इंडिया में एक आदमी का ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम होता है 8 से 9 घंटे। आपका स्क्रीन टाइम बेटा कितना है? आपका? मैं आपको एवरेज बता रहा हूं इंडिया की, 8 से 9 घंटे। और ये जो बड़ी उम्र के बैठे हैं, ये भी शाम तक यदि व्हाट्सएप के और इंस्टाग्राम के और ट्विटर के सारे निकाल लें तो 6 7 8 घंटे तो सब लगाते हैं। अब जागने के जो घंटे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टाइम तो इसी में लगा दिया, फिर बाकी काम करने के लिए, कसरत करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए टाइम ही कहां बचता है। आत्मानुशासन यदि सेल्फ डिसिप्लिन करना है, स्टूडेंट लाइफ में करना है, इवन मुझे और आप लोगों को करना है, सबसे पहली चीज है सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन को कट करना पड़ेगा। और दे आर पीपल हु हैव बीन डूइंग इट। इट मींस द जूस आर डूइंग इट। इट मींस सम अदर पीपल दे आर डूइंग इट। अभी पिछले दिनों एआई समिट हुई थी पेरिस में, पता है आप लोगों को? यस। उसमें को चेयरमैन अपने आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब थे। अब को चेयरमैन थे उस समिट के, लेकिन 2 3 दिन तक जो पेपर वहां प्रेजेंट हुए, 700 एप्लीकेशंस आई थी, उनमें से 60 लोगों के पेपर सिलेक्ट हुए, और एक भी इंडियन का पेपर वहां प्रेजेंट ना हो एआई की वर्ल्ड समिट में। तो ये चिंता की बात है या नहीं है? डज इट नॉट इंडिकेट कि हमने अपना बोनसाई बना लिया है और अपने बच्चों का बोनसाई बना दिया है हमने? अब बोनसाई जो बन गए हैं, वो उनके बच्चे भी बोनसाई बनेंगे। खतरा ये है, जब जो जाग जाए, हम लोगों में से जाग जाते हैं कुछ लोग, जैसे गणपत भाई जाग गए हैं, मंजू बेन जाग गई हैं, इन्होंने काम किया। और जिस वक्त गए थे वहां, आज ही गणपत भाई मुझे बता रहे थे कि जब वहां गए तो उनका प्रोनाउंसिएशन सुन के लोग हंसते भी थे, और कहते ये थे कि भाई द वे यू स्पीक गणपत भाई, वी रियली एंजॉय इट, वी लाइक योर प्रोनाउंसिएशन। अब इन सारी चीजों को फेस करने की ताकत आदमी में एक बार आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता सेल्फ डिसिप्लिन में से होके जाता है। आप लोगों को याद होगा माइकल फेल्प्स, जिसने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। हमने सबने मिलके 125 साल में जितने जीते, उसने एक ही ओलंपिक में उतने जीत लिए, एक ही आदमी ने। उसने 8 साल तक 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम पूल से बाहर नहीं निकला, कंटिन्यूअस स्विमिंग करता था। एंड व्हेन ही वाज बोर्न, व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड व्हेन ही वेंट टू स्कूल, द टीचर्स फाउंड ही हैड एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम था उसको। पढ़ने में उसका दिल ही नहीं लगता था, ही कुड नॉट फोकस ऑन स्टडीज, पढ़ना लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको। देन द स्कूल सिस्टम एंड द फैमिलीज दे फाउंड कि यदि इसमें इंटरेस्ट नहीं तो उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि वो टिक के बैठता ही नहीं था, सारा दिन एनर्जी इतनी थी, सारा दिन वो एक्टिविटी में रहता था, कुछ करता था। तो उन्होंने रास्ता एक ही निकाला कि इसको स्विमिंग में डाल देते हैं। और स्विमिंग में डालने के बाद वो बच्चा फिर बाहर निकला नहीं, और उसको ओलंपिक के रिकॉर्ड्स बताए गए, वो लगातार उन पे काम करता गया, और इसका रिजल्ट ये था कि उसने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। ये जेनेटिकली आपसे और हमसे बहुत डिफरेंट नहीं था,
ये वो था जिसको अपना ये पता था, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मैं जो कुछ हूं मैं सर्वश्रेष्ठ हो सकता हूं। और वो भगवान ने अपने बारे में नहीं किया था, उन्होंने अर्जुन को बताया था आप और हम सबको यदि गीता में से कुछ सीखना है तो यही है, सीखना है कि यदि सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी वृत्तियों को आप यदि कंट्रोल कर लें तो आपके अंदर कितनी ताकत है उसका माप सिर्फ भगवान को पता है और किसी को नहीं पता है। यहां स्ट्रगल ये होती है कि गुजरान कैसे चलेगा, यहां स्ट्रगल ये होती है कि एग्जाम पास कैसे चलेगा। वाई कांट वी थिंक ऑफ बीइंग वर्ल्ड बीटर्स? और हम में से ही कुछ लोग जाके करते हैं, हम में से ही कुछ लोग ये चीज प्रूव करते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी शुरू की है। मैं अभी गणपत भाई का मैं बार बार उनका नाम इसलिए लूंगा कि वो हमारे सामने जीते जागते एग्जाम्पल हैं इस चीज के। एक आदमी डिसाइड करे और यदि अपनी शक्तियों को इधर उधर वेड़फे नहीं, यदि डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, यदि इधर उधर वेस्ट ना करे और पूरी ताकत के साथ करता रहे। एक दिन गणपत भाई और बेचर भाई से मेरी बात हो रही थी। आई कुड नोटिस they never wasted anything, they never wasted any time, they did not waste their energy, neither in India nor after going to America. America is a nation full of distractions. वहां तो सभी कुछ है, प्रलोभन बहुत है, तरह तरह की चीजें लालायित करने के लिए हैं। यदि उन्होंने अपने आप को कंटेन करके रखा, कंट्रोल करके रखा, अपनी ताकत को सही तरीके से लेजर की तरह लगाया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेज। आप यदि फोकस करेंगे, उसके लिए पहली चीज आपको चाहिए वो सेल्फ डिसिप्लिन है। कन्वेक्स लेंस का आपने वो अखतरा किया होगा ना, बिलोरी कांच का, यदि सूर्य के सामने रखो तो कागज को जला देता है। कागज को इसलिए जला देता है कि सारी ताकतें इकट्ठी हुई और हमारे अंदर की ताकतें ऐसे जाती हैं बाहर, चारों चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं, कोई ताकत बचती नहीं। कोई कागज जलना तो बात ही कि थोड़ी गर्मी भी फील नहीं होती। आदमी पास से निकले यही फील नहीं होता कि यह कोई आदमी जा रहा है, ये कोई ह्यूमन बीइंग जा रहा है। वी गो लाइक शीप। ऐसे जीने के लिए भगवान ने जन्म नहीं दिया है। दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और इसका रास्ता क्या है? पतंजलि ने बता दिया, मुझे उससे बढ़िया कोई रास्ता मिला ही नहीं। अब चीजों को पढ़ लेना, जान लेना वो काफी नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। मन जानत सब बात, जानत भी अवगुण करे, काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। ये बुद्धि को तो सब पता है, इसने किताबों में सब पढ़ लिया, लाइब्रेरी से लेके चैट जीपीटी और गूगल से सब कुछ पढ़ लिया, फिर लगा हाँ मैंने खबर छे। अरे तने खबर छे, तने तने कई खबर नहीं, तने फकत शब्दों नहीं खबर छे, ते अमलवारी करवानी बाबते तो एक डगला अगर चालो नहीं, अमलवारी करनी चाहिए। मन जानत सब बात, जानत भी अवगुण। सब कुछ पता है फिर भी दिशा उल्टी उल्टी जाता है, फिर भी घोड़े आपको गड्ढे में ले जाके डाल देते हैं। काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। आपका हालत तो ऐसा है कि आपके हाथ में लालटेन है, दीवड़ा है, अने तमे खाड़ा में कीचड़ में पड़ा छो। हम लोगों की सभी की यही हालत है। यदि हम, इफ वी आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ वी आर नॉट हैप्पी इन लाइफ, द रीजन इज नोवेयर एल्स, रीजन इज हियर। आई एम रिस्पॉन्सिबल। भगवान जीवन इस तरह से देते हैं जैसे किसी आदमी को कैनवास दे दिया हो, कैनवास जिसके ऊपर चित्र बनाया जाता है। कूची दे दी, ब्रश दे दिया, पेंट दे दिया, सब तरह के रंग दे दिए। अब ये आप पे है, हम अपने जीवन का चित्र कैसे बनाते हैं। एक कोरी बुकलेट हमें दे दी जाती है, नोटबुक भगवान दे देता है, पेन दे देता है, बुद्धि दे देता है और कहता है लिख इस जीवन में क्या लिखना चाहता है, जो लिखेगा वो मिलेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी ने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ कुछ चीज करने की सोची हो और वो ना कर पाया हो वो चीज। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। We waste our energies, we waste our time, we waste everything and then we complain कि मारी तो किस्मत में कहीं नहोता। अरे किस्मत में तो बधु हतु। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं और हम हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती हमें जिंदगी। हर आदमी, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ, और वही दूर चली जाती है, वही दूर चली जाती है, जितना उसकी तरफ दौड़े वो दूर चली जाती है, नहीं मिलती। उसका कारण एकमात्र ये है कि आप जिस चीज के पीछे दौड़ते हैं उसको आपने कभी विजुअलाइज ही नहीं किया।
आप ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताएं, आप में से कितने लोगों ने जीवन में अपने लक्ष्यांकों को कभी कागज पे लिखा है? हाथ खड़े करके बताएं, मुझे पता लगेगा। ओनली अबाउट 3% हैंड्स हैव गॉन, 2 से 3% हाथ ऊपर गए हैं। ये मैं आपको बताऊं, पूरे दुनिया में रिसर्च हुई है, ओनली 3% पीपल एवर टेक द केयर ऑफ राइटिंग देयर गोल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सिर्फ 3% आदमी जिंदगी में अपने लक्ष्यांकों को कागज पे कभी लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। और उन 3% में से लिखने के बाद 2% भूल जाते हैं। सिर्फ 1% आदमी है जो उसके बाद उस चीज के पीछे लग जाते हैं कि अब छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और जो आदमी नक्की कर लेता, 1% आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, जो वो चाहते हैं वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। दे कैन अचीव वट एवर दे डिसाइड। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी मुझे ये बताइए कि आज आप लोगों में से जाके कितने लोग अपने जाके लक्ष्यांक कागज पे लिखेंगे? फिर मैं लेक्चर वेक्चर यहां पूरा करता हूं। आई एम नॉट हेयर टू वेस्ट माई टाइम एंड योर टाइम। कितने लोग लक्ष्यांक लिखेंगे? आई वॉन्ट 100% हैंड्स अप। यस, आपको भी बहन, इट इज नेवर टू लेट, प्लीज रेज योर हैंड। सबसे पहले मैं दोनों हाथ में रखता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ, हरियाणा में। इसी तरह का एरिड एरिया था हमारा भी। और जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गया तो स्कूल में छठे धोरण के लिए कोई रूम भी नहीं था, और पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। एंड आई यूज्ड टू विजुअलाइज थिंग्स, क्योंकि मैंने रेडियो पे एक बार विंबलडन की कमेंट्री सुनी, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की, जो जून महीने में होता है। और मैं सोच रहा था ये गेम कैसे खेला जाता होगा। और रेडियो, कोई मेरे गांव में कोई टेनिस कोर्ट नहीं था। और मैं सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। इन द मीन टाइम डेविस कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में आ गई। और मैंने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया। 15 लव, 30 लव, 13, 15। मैंने कहा एक ही पॉइंट में 30-30 पॉइंट, 15-15 पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं? एंड आई लर्न ओनली बाय लिसनिंग टू द रनिंग कमेंट्री। और मैं विजुलाइज करता था जो न्यूज़पेपर में डिस्क्रिप्शन आता था कि विंबलडन कैसा होगा। और मैंने लिखा कि मैं विंबलडन में जाऊंगा। मैंने ये भी लिखा कि जब इंग्लैंड की टीम टॉनी लुइस की कैप्टनशिप में 72-73 में इंडिया आई, तो पहली बार मैंने कमेंट्री सुनी। और मैंने ये कहा कि मैं जिस स्टेडियम में ये मैच खेलते हैं, मैं भी उस स्टेडियम में जाके कभी ना कभी देखूंगा और खेलूंगा। अब ये दो चीजें थी। तीसरे भी इसी तरह के गोल्स थे। तीसरा गोल मेरे फादर ने मुझे दिया। मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम सारे दिन खेलते रहते हो, यदि पढ़ोगे नहीं तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, जिंदगी में मजा नहीं आएगा। माय फादर इंसिस्टेड विद मी कि एकेडमिक्स पे ध्यान दो, नेवर डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। माय फादर गेव मी दिस ड्रीम कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम करना है। अब उनको कितना पता था आईएएस और आईपीएस के बारे में मुझे नहीं पता, बट ही गेव मी दिस ड्रीम। और मुझे अभी भी वो डायरी याद है जिसपे मैंने लिखा था कि पापा ने मुझे एक ड्रीम दिया है और मैं इसको सच करके बताऊंगा। मैंने ये ड्रीम्स अपने लिखे थे। और मेरी एक परंपरा थी, मैं सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट में बता रहा हूं। मेरे गांव के स्कूल में जो फुटबॉल का ग्राउंड था, रात को मैं कभी कभी वहां जाता था अकेला घूमने के लिए। फुटबॉल के ग्राउंड में खड़ा होकर मैं बोलता था कि मैं आई डेडिकेट माई सेल्फ टू दिस ड्रीम, आई डेडिकेट माई सेल्फ टू दिस ड्रीम। उसके बाद में हुआ क्या कि हर साल आई यूज्ड टू बी केयरफुल कि 31 दिसंबर को मुझे गांव में जाके ग्राउंड के बीच में खड़े होकर बात करनी है अपने आप से कि जो पिछले साल लक्ष्यांक रखे थे उनमें से कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए। और जो नहीं पूरे हुए उनमें मैंने कहाँ थाप खाई, और वो थाप खाना नहीं है इस साल, उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। लाइफ बिकेम इजी। It became as easy as this. Self-discipline came to me naturally. मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी गिनती की फिल्में कॉलेज लाइफ में फिल्म देखना बुरा नहीं है। अब तो मैंने दुनिया की, वर्ल्ड की जो टॉप 100 फिल्में किसी भी लैंग्वेज की होंगी, अब मैं ऑलमोस्ट उसका प्रोफेसर हूं। मैं पढ़ा सकता हूं कि अच्छी फिल्में क्या हैं, वर्ल्ड में कौन सी अच्छी फिल्में बनी हैं। लेकिन उस वक्त मैंने वो भी नहीं देखा। उस वक्त मैं कहीं इधर उधर जाता भी नहीं था।
मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता था। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ ह्यूजली सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन जो ड्रीम्स मैंने लिखे थे आई वाज एबल टू फुलफिल देम ऑल। 2003 when I went to America for the first time, वापसी में मैंने टिकट वाया लंदन ली, और लंदन जाने का यही था कि लंदन इसलिए जाऊंगा कि विंबलडन जाके आना है। वहां एक दोस्त को बात की कि मैं हीथ्रो पे उतरूंगा और हीथ्रो से मुझे गाड़ी में लेके सीधा विंबलडन जाना, उसके बाद कुछ और देखेंगे और कुछ करेंगे। और जब मैं गया तो मेरा रुआना शरीर ना उभा था। आई लाइक द प्लेस सो मच। मेरे बचपन के पूरे ड्रीम्स उसके साथ जुड़े थे। और उसके बाद मैं 92 93 में, जब 93 94 में जब मैं एसपी गांधीनगर था, तो एक ऑस्ट्रेलिया की टीम या वेस्ट इंडीज की टीम आई थी। मेरे फादर यहाँ आए हुए थे। वो मुझे हमेशा रोकते थे कि तू खेल कम, पढ़ ज्यादा। एंड देन जैसे मैं पढ़ता गया, मेरी पढ़ाई ठीक होती गई, तो मेरे फादर को स्पोर्ट्स का शौक लग गया। देन आई आस्क्ड माय फादर कि पापा आप आए हुए हो, आज टेस्ट मैच है, कपिल देव का आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के चांसेस हैं, 434वीं विकेट मोटेरा स्टेडियम में उसको मिलने वाली है, आप चलोगे? तो उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया मौका है, मैं चलता हूं। एंड आई टुक हिम। और मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, उस वक्त बीसीसीआई इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। मैंने स्टेडियम के मैनेजर से बात की, और सारा स्टेडियम मेरे कब्जे में था, क्योंकि उस एसपी गांधीनगर के अंडर आता था स्टेडियम। पूरी सुरक्षा व्यवस्था मेरी थी, और टाइट इतना नहीं था सिस्टम। मैंने उससे पूछा कि भाई पापा को इंडिया टीम के साथ बॉक्स में बैठाया जा सकता है? नहीं। तो एक प्लेयर था, उसने कहा जी मैं ले चलता हूँ अंकल को, मैं ले जाता। एंड माय फादर स्पेंड द होल डे। मैंने पूछा पापा लंच का टाइम हो गया, खाना खाना है? बोला यार खाना तो रोज खाते हैं, आज मेरे को यहाँ आराम से बैठ के देखने दे इसको। तो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पहली कंडीशन है कि ड्रीम को पहले लिखना पड़े, फिर बाकी सब चीजों को एक साइड में रख के उसके लिए परसू करना पड़े, उसके लिए दिन रात एक करनी पड़े। आसानी से नहीं होता, लेकिन फिर आपको थकान नहीं लगती। पैशन, यदि आप अपने पैशन को, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को जो भगवान ने आपके अंदर डाली हुई हैं उसको पहचानिए। यदि आपके अंदर, मैं एक बच्चे की स्टोरी सुनाऊं, आप लोगों को सुननी है? एक बच्चा था, और जैसे इंडिया के ज्यादातर बच्चे करते हैं, सारे दिन यही करता था, और ये करता था, और ये करता था, और ये करता था, सारे दिन ये करता था। उसके फादर ने कहा, उसके फादर टीचर थे, उन्होंने कहा कि बेटा तू कभी पढ़ भी लिया कर। बोला कि भणवा में मैंने कोई रसज न थी, मारे भणवूज न थी। अब फादर बोनसाई नहीं बनाना चाहते थे। फादर ने देख लिया, उसको सुन लिया। फिर कुछ दिन के बाद फादर ने आके कहा कि तेरे स्कूल में, जिस स्कूल में तू जाता है, उसमें क्रिकेट की टीम है? उसने कहा हमारे स्कूल में तो नहीं है, मैं तो यही शेरी में खेलता हूं, जैसे हम लोग सभी खेलते रहे हैं। तो फादर ने फिर पता किया, बॉम्बे के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, कि किस स्कूल में क्रिकेट की सबसे अच्छी टीम है। शारदा आश्रम स्कूल में सबसे अच्छी टीम है। फादर ने पता किया, फिर पता लगा कि जहां मैं रहता हूं मेरे घंटे से तो 2 घंटे की दूरी पे है वो शारदा आश्रम स्कूल। बच्चा 2 घंटे रोज जाएगा, 2 घंटे वापस आएगा, क्या बचेगा इसमें? उनकी एक कजन सिस्टर शारदाश्रम स्कूल के पास रहती थी। उनको जाके फादर ने कहा कि बेन, मारो दीकरो क्रिकेट पाछड़ गांडो छे, घेलो छे ने, आ स्कूल में એને એડમિશન કરાવી દઉં, તમારા ઘરની નજીકમાં સ્કૂલ છે, તમે એને ઘરે રાખશો? तो बेन ने कहा कहीं वांधो नहीं, हूँ राकेश। वो बच्चा उस स्कूल में डाल दिया गया। बच्चा खेलता गया, खेलता गया। फादर ने 2-3 साल के बाद पूछा कि तू स्कूल की टीम में आ गया? बोला हाँ मैं तो स्कूल की टीम में आ गया। बोला इतना जल्दी आ गया? कि हाँ मैं तो दूसरे साल ही शारदाश्रम की टीम में आ गया था। फादर ने उसके बड़े भाई को बुलाया, बोलते ये तो अभी बोलता है कि टीम में तो बेस्ट प्लेयर हो गया स्कूल की टीम में, इसको कहीं और भेजना पड़ेगा। पूछा कि सबसे अच्छी कोचिंग कहाँ चलती है? उन्होंने बताया शिवाजी पार्क में चलती है। फादर ने फिर पूछा कि शिवाजी पार्क में सबसे अच्छे कौन है? रमाकांत आचरेकर हैं। और उसका भाई अजित सचिन को पकड़ के रमाकांत आचरेकर के पास ले गया। उसके फादर भी साथ में गए कि भाई ये बच्चा तेरे को संभाल रहे हैं, इसको क्रिकेट के अलावा और कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं है, कुछ विचारता नहीं, कुछ करता नहीं। और रमाकांत आचरेकर ने उस बच्चे का जब टेस्ट लिया, उसका ट्रायल लिया, तो उन्होंने देखा कि बच्चे में तो टैलेंट है। उन्होंने उसको अपने
कब्जे में ले लिया, उसको कोच करना शुरू किया। 16 साल की उम्र में वो लड़का इंडिया टीम में खेल रहा था, और न केवल इंडिया टीम में खेल रहा, वो पाकिस्तान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। पाकिस्तान में अब्दुल कादिर भी था, सरफराज नवाज भी था, वो बड़े बड़े खतरनाक बॉलर्स थे उस वक्त, वकार यूनुस था, और इन सभी को फोर्स करके और पहली इनिंग में 6 भी मार दिया उसने। सचिन तेंदुलकर को यदि उसके फादर ने, जैसा कि हम और आप सब लोग करते हैं, कि बच्चा कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको बोलते हैं आज थी तारू क्रिकेट बंद, અને સાંજે તારા ગણિતનો ટ્યુશન, સવારે ઇંગ્લિશનો ટ્યુશન અને દિવસમાં સાયન્સનો ટ્યુશન, દિવસમાં 3 ટ્યુશન તું કરશે, અને જે રમતા મને જોવા મળે છે તારા हाथ पग तोड़ी नाखीश। ये हम लोग सभी करते हैं। आप लोगों ने महसूस किया है कि नहीं किया है? ज्यादातर लोगों ने महसूस किया है। अकेले क्रिकेट के बारे में नहीं, जिस चीज में शौक है वो तो करने ही नहीं देना। जो भगवान ने जो जादू डाला है उस जादू को तो खिलने नहीं देते। ये बता दिए, आप लोग सब गांव में, इस ग्राम्य विस्तार में रहते हैं, गुलाब के फूल पे आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करें, कितने भी खाद पानी बदल दें, वो कमल बन सकता है क्या? उस गुलाब के फूल को हम खराब कर सकते हैं। कर्माएलो गुलाब थी अपना समाज ठसोठस भरेलू छे। हम गुलाब को कमल बनाना चाहते हैं, कमल को गुलाब बनाना चाहते हैं। ये हमारी सबकी त्रासदी है। यही सब कारण है कि नोबेल प्राइज भी कम मिलते हैं, यही कारण है कि ओलंपिक्स में गोल्ड भी नहीं मिलते। ये पूरा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये पूरा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। जब तक बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, ये नदियां जब तक यूनिवर्सिटी में पहुंचती हैं, इनका हाल क्या होता है? यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। पानी वहां ठहर गया जब आपके पसंद के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दिए, आपकी पसंद के खेल नहीं खेलने दिए। आपको पेंटिंग करना पसंद था, वो बंद करा दिया गया। आपको डांस करना पसंद था, वो छुड़वा दिया गया। आपको पसंद कुछ और था, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा आ गए तो आपको जबरदस्ती इस सब्जेक्ट में भेज दिया, उस सब्जेक्ट में भेज दिया। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं। न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा। हमें गूंगे और बहरे की तरह नहीं रहना है, हमें जिंदा आदमियों की तरह से रहना है, हमें भगवान कृष्ण की तरह रहना है। हमें अपनी ताकत को बाहर निकालना है, और ताकत को बाहर निकालना है, उसका सबसे पहला सूत्र है सेल्फ डिसिप्लिन। जब सब चीजें फेल हो जाती हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा था, अथ योगानुशासनम। सब चीजें फेल हो गई, कुछ काम नहीं कर रहा है, जिंदगी में किसी चीज से हैप्पीनेस और सक्सेस नहीं मिल रही है। उसके बाद कहते हैं अथ योगानुशासनम। अब योग के अनुशासन की बारी है, अब योग ट्राई करो। जब तक आप बाकी सब चीजों के ट्राई करके फेल नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी आदमी ने योग ठीक से किया नहीं आज तक। वो योगासन कर सकता है, लेकिन योग का अनुशासन उसके अंदर तभी आएगा। सारी चीजें फेल हो गई, उस पर आप काम करना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि यार ये सेल्फ डिसिप्लिन एक चीज मैंने पकड़ ली होती तो ये तो रामबाण औषधि है हर चीज की। इससे तो कोई भी ताला खुल सकता था। और ताले जिंदगी में कैसे लगे होते हैं, एक कहानी और सुनाऊं आप लोगों को। हुडनी का नाम सुना है? एक जादूगर था हुडनी, और उसकी एक्सपर्टीज क्या थी? उसका जादू ये था कि वो किसी भी ताले को खोल सकता था। और उसने एक चैलेंज दिया था कि दुनिया की कोई भी जेल मुझे जेल के अंदर बंद नहीं कर सकती, मैं बाहर निकल आऊंगा, कोई भी ताला मैं खोल सकता हूं। अब ब्रिटिश आइल्स पे एक नई जेल बनाई गई। उन्होंने कहा कि 5,000 पाउंड देंगे यदि हुडनी हमारी इस जेल से बाहर निकल जाए तो। हुडनी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी कंडीशन ये होती थी कि भाई जो मैं मेरी कोट पहनता हूं वो कोट पहन के जाऊंगा, और जो मेरी बेल्ट है वो बेल्ट पहन के जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, दोनों पहन के जा। उन्होंने बड़ी शानदार जेल बनाई थी, बड़ा खतरनाक तरीका था उसको बंद करने का।
अब हुडनी अंदर गया और उसका चैलेंज ये था कि 1 घंटे में बाहर आऊंगा। अब उसने बेल्ट जाते ही निकाली, जैकेट में से जो उसके साधन सामग्री जो औजार थे वो निकाले, और उसके बाद माथाकूट शुरू की ताले को खोलने की। ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, ताला खुले ही ना, ताला खुले ही ना, ताला खुले ही ना। सब चीजें ट्राई कर ली, नहीं खुला। पसीना आ गया, 2 घंटे हो गए, थक के थक के परसेवा में रेस बेस थई ने, और चक्कर खा के उस दरवाजे पे पड़ गया और दरवाजा खुल गया, क्योंकि वो बंद किया, लॉक किया ही नहीं था। वो लॉक ही नहीं किया गया था। वो मान के चल रहा था लॉक्ड है, वो लॉक को खोलने की ट्राई में था। अरे यार, जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं है, जिंदगी में कोई ताला हमें रोकता नहीं है सक्सेसफुल और हैप्पीनेस तक जाने का। दरवाजे को जरा ठीक से धक्का तो दो, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। ड्रीम कुछ भी करा सकते हैं, ड्रीम देखो, लक्ष्यांक नक्की करो, उनके पीछे पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ। और उस लगने की ब्यूटी क्या है कि जो आपका नेचुरल पैशन है, जैसे क्रिकेट, सचिन के अंदर क्रिकेट नेचुरल था, उसको और कुछ नहीं था। जिस आदमी के अंदर जो कुछ है, अब आपको ये कैसे पता लगे? ये तो स्कूल ने, कॉलेज ने, टीचर्स ने, घर परिवार वालों ने मिलके खत्म कर दिया, आपको पता ही नहीं लगने दिया कि आपके अंदर भगवान ने कौन सा जादू डाला था। आप जानना चाहते हैं कैसे पता लगे मेरे अंदर क्या मैजिक है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये कैसे पता लगे, जानना चाहते हैं आप लोग? बहुत लूकवार्म रिस्पॉन्स है, मेरी बताने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जानना है? हाँ, ये एनर्जी चाहिए, इससे बिना काम नहीं होता मेरा। 2 चीजें हैं। आप कोई काम करते हैं और वो काम करना शुरू किया, 1 घंटे किया, 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, आप उसमें डूब गए, उसको काम करते गए करते गए करते गए। फिर अचानक घड़ी पे देखो, अरे यार 8 घंटे हो गए काम करते हुए, पता ही नहीं लगा। जिस काम को करते हुए आप समय का बोध गुमा देते हैं, समय નું ભાન પણ રહેતું નથી, આના अर्थ છે કે આ કામ તમારી સ્ટ્રેન્થ છે, ये काम जिंदगी में पकड़ोगे तो उड़ोगे ऊपर। नंबर 2, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा हो गए। 8 घंटे के बाद जब उठते हो तो थोड़ी कमर सीधी करते हो, और उसके बाद देन यू फाइंड कि कोई थकान ही नहीं है, एनर्जी तो पहले से भी ज्यादा हो गई है। जिस काम को करने में आप समय का भी भान गुमा दें, और जिस काम को करते हुए आपको थकान ना लगे, इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है। अब तीसरा एक कंफर्मेटरी टेस्ट बाकी रहा, ये इंडिकेटिव टेस्ट थे। कंफर्मेटरी टेस्ट जानना है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, जानना नहीं है। क्यों बताऊं फिर मैं? जानना है। ये लड़कियों की तो बिल्कुल, वैसे तो बहुत बोलती है, मैंने सुना है, लेकिन यहां तो लड़कियों की आवाज ही नहीं आ रही है। कंफर्मेटरी टेस्ट जानना है? हाँ 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 हाँ। कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि जिंदगी में, याद कीजिए, हर आदमी की जिंदगी में कुछ एक बार ऐसी घटना घटती है कि आपने कोई काम सामान्य तरीके से ऐसे ही किया हो, और लोगों ने कहा, अरे ये तो तूने कमाल कर दिया यार, तू ऐसा कैसे कर लेता है। हर आदमी की जिंदगी में किसी ना किसी काम को करते हुए ये चीज सुनने को मिलती है, यार माराथी ने थे तो ताराथी केवी रीते થઈ જાય છે। कितने लोगों को ये चीज सुनने को मिली है जिंदगी में कभी? बाकी लोग में कॉन्फिडेंस नहीं है हाथ रेज करने का। सबके साथ होता है ये। इसका मतलब आप बोनसाई पूरी तरह से बन चुके हैं, निकलो, जनरल शेरमन बनो, उगो, ऊंचे हो। तीसरा ये टेस्ट है कि जिस काम को करते हुए आपको कोई खास ध्यान नहीं गया, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो यार तूने कमाल कर दिया, इतना कैसे कर लेता है, ये इतना अच्छा कैसे कर लिया काम तूने। इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है। उस पे काम करोगे तो जिंदगी में मैजिक होगा, फिर सक्सेस की और हैप्पीनेस की कोई कमी नहीं रहेगी जिंदगी में। छोटी छोटी चीजों पे मत लाइफ को वेस्ट करना। लाइफ इज अ वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अनजान से सितारों की मुझको नहीं तलाश। नाना मोटा तारलाओनी पाछળ હું નથી,
गुमनाम से सितारों की मुझको नहीं तलाश, मैं मुनफरीद हूं, तू मुझे आफताब दे। जिंदगी में मांगना है तो पूरा सूरज मांगो, नाने मोटे दीपक क्या मांगने हैं। छोटे लक्ष्यांक जिंदगी में इंश्योर करते हैं कि आप बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। थिंक बिग। गुजराती में जब मैं पहली बार गुजरात आया था, मैंने उसी साल ये चीज सुनी थी, निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। थिंक बिग, थिंक हाई। पानी को ठहरने मत दो, पानी को चलता रहने दो, क्योंकि in the lexicon of youth that fate has reserved for a bright manhood, there is no such word as fail. नवयौवन के शब्दकोश में जिसे भाग्य ने उज्जवल प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित करने को रखा हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है असफल जिसका उच्चारण हो। लाइफ की इस डिक्शनरी में फेलियर नाम का शब्द हो ही नहीं सकता यदि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें, यदि अपने लक्ष्यांक नक्की कर लें, और यदि पूरी धगस के साथ इफ यू गो द होल हॉग इन परसूट ऑफ योर गोल्स इन लाइफ, failure will never be anywhere in your life. I'm 100% sure of this. And I have seen umpteen number of people achieving things like this. स्टीव जॉब्स ने इसी तरह से अचीव किया। डिसिप्लिन देखना है स्टीव जॉब्स का, देखो उस बंदे को आपने ब्लैक टर्टल नेक के अलावा किसी ड्रेस में कभी देखा? उसका कहना यह था कि यदि मैं 20 तरह के 50 में तो 500 तरह के कपड़े खरीद सकता हूं, दररोज सुबह होके मेरे को यह विचारना पड़े ये पहनूं ये पहनूं ये पहनूं या ये पहनूं। एक ब्लैक टर्टल नेक हमेशा वो ही पहनता था ताकि डिसीजन फटीग ना आए, मेरा टाइम वेस्ट ना हो रोज नक्की करने में इसके साथ क्या मैचिंग पहनूं इसके साथ क्या मैचिंग पहनूं। जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं उनकी पहली पहचान ये है कि वो इस तरह की बोगस चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसके साथ कौन सा, अरे जो कपड़ा पहनोगे यदि अंदर से दम है, हर चीज एक फैशन स्टेटमेंट बनेगी। आप लोग सोशल मीडिया से बचें, टाइम वेस्ट करने से बचें, एनर्जी वेस्ट करने से बचें। सोने के टाइम पे सो जाएं, उठने के टाइम पे उठें, एक्सरसाइज के टाइम पे उठें। पढ़ना है तो अपनी एनर्जी को मैनेज करें। आज तक आप लोगों को सबने टाइम मैनेजमेंट बताया होगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज मोर अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। जब आप मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे होते हैं तो डिफिकल्ट चीजों को उस वक्त पकड़ लो। ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है लेकिन इसका एग्जाम नजदीक आ गया, आज उसी को पकड़ लो। हाई एनर्जी लेवल हो, लो एनर्जी लेवल हो, कभी कभी आदमी थकान महसूस करता है, पूरे दिन में साइकिल चलता है एनर्जी का। जब लो एनर्जी हो तब थोड़ा सोशल मीडिया देख लिया, मेल वगैरह उसका रिप्लाई कर लिया, दोस्तों से गप्पे लगा लें। हाई एनर्जी आते ही अपने उस काम पे लगो जो काम आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाता है। एनर्जी मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्फ डिसिप्लिन। महात्मा गांधी कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आज पूरा देश उनको बापू गांधी इसलिए बोलता है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको सेल्फ डिसिप्लिन समझ आ गया, उनको सत्याग्रह समझ आ गया, उनको लैटिन सीखनी थी। 2-3 बार तो बापू इंग्लैंड गए तो गोता खा गए लैटिन के एग्जाम में, और लैटिन का एग्जाम ना हो तब तक हाई स्कूल पास नहीं माना जाता इंग्लैंड में। लेकिन लग गए कि अब वापस नहीं जाना है, अब तो बैरिस्टर बार एट लॉ बन के ही जाऊंगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन था। अपना टॉयलेट अपने आप साफ करूंगा करूंगा, मेरी वाइफ भी बाकी लोगों का आश्रम में टॉयलेट साफ करेंगी। डिसिप्लिन था, पूरे आश्रम का डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन होते होते दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत थी इंग्लैंड, द ब्रिटिश एम्पायर, उसको इंडिया से निकालना, जहां 1757 से लेकर 1947 190 साल उन्होंने इस देश पे राज किया ऑलमोस्ट। आप हिस्टोरियन होंगे काफी यहाँ। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, एंड इंग्लैंड वाज ऑल ओवर इंडिया। इतनी बड़ी ताकत को इंडिया से निकालने का स्वप्न लेके जब बापू ने काम करना शुरू किया तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए वो के बिना वो पॉसिबल नहीं था। और ये डिसिप्लिन उन्होंने खुद में कल्टीवेट किया। सत्याग्रह का नाम ही सेल्फ डिसिप्लिन था कि लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पता बापू को पता था, बापू हम तो बहुत स्मार्ट था। बापू ने खबर थी कि हथियार तो हमारे पास है नहीं, तो लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, तो वो बात है जशू मारवो है तो मारो मारो, हलवाना नहीं, सत्याग्रह करेंगे, जेल में डालोगे तो भूख भूख हड़ताल करेंगे। अब ये रास्ते नए निकालने का काम बापू ने किया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इंडिया से पुश आउट कर दिया।
बाहर कर दिया। अंग्रेज थक के गए यहाँ से, वो समझ ही नहीं पाए कि इस आदमी से कैसे हैंडल करें। एंड ही वाज एबल टू रेज द होल ऑफ द नेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, 27 साल सेल्फ डिसिप्लिन। जब वो बाहर आया उसकी हेल्थ भी खराब नहीं थी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द मैजिक। इस मैजिक से ये स्टोरी तो ऐसे ही लंबी चलती चली जाएगी, मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया। दिस द हाई टाइम आई शुड कॉल इट अ डे। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो मैं वो प्रश्न ले सकता हूं, और यदि प्रश्न नहीं है तो आई कैन नाउ स्विच ऑफ दिस कॉलर माइक। बट इट हैज बीन अ प्लेजर। जब मैं इतने सारे ब्रिलियंट लोगों को, आप लोग सभी नॉलेज वर्कर्स हैं, आप लोग यहाँ से काम लेते हैं, इतने लोगों को यहाँ देखता हूँ, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। इतनी एनर्जी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर एनर्जी आइंस्टाइन और ओपनहेमर ने निकाली थी। गणपत यूनिवर्सिटी से ड्रीम ये मत लेके चलो कि नौकरी 25,000 की 50,000 की नौकरी लेनी है, या अमेरिका जाके इतने लाख का पैकेज लेना है। प्राइज ये लो कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट साइंस का अवार्ड यहाँ आएगा, और नोबेल प्राइज यहाँ क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए। इतने सारे लोगों को मिलता है, इतने सारे जूस को मिलता है। एंड लेट मी टेल यू, वी इन गुजरात आर नो लेस देन जूस। हमें अपनी ताकत का पता नहीं है, हमने अपनी शक्ल को पहचाना नहीं, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। चारों तरफ तरह तरह के प्रलोभन होंगे, लेकिन यदि आप टिक जाएंगे, यदि आप लगे रहेंगे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, कोई दुनिया की ताकत आपको सक्सेसफुल और हैप्पी होने से रोक नहीं सकती। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखी थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में ट्राई कर रहा हूं। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदाई है, मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। मेरे अपने पैरामीटर्स होते हैं। यदि 1.25 घंटा मैंने आपको यहाँ रखा, आपका 1.25 घंटा लिया और एक भी प्रश्न नहीं आता, इसका मतलब कर दीपक कुएं पड़े। इस मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट मोड है हमारा, हम सब कुछ सुन के हाथ झाड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एनर्जी मैंने ऐसे मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ आपके सामने डाला है, और मैंने कोई बकवास यहां नहीं की है, कोई फालतू का भाषण नहीं किया है। यदि इससे फर्क नहीं पड़ता है तो दैट विल नॉट बी योर फेलियर, दैट विल बी माय फेलियर, एंड आई नेवर एक्सेप्ट अ फेलियर इन लाइफ। थैंक यू Sir, for your insightful words and for sharing your wisdom with us. On behalf of everyone present here today, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished speaker, Sri Ajay Kumar Tomar sir, for delivering such an insightful and engaging lecture. Your passion and expertise truly inspiring and have left us all with a deeper understanding of life. I would also like to thank all of you for your active participation and attention throughout the session.